Sir, am I audible? Yes, ma'am. Audible. Perfect. Let me check my Yes, please. impetus. उनके लिए यही है तो दोनों Yes, sir. Is my file visible, sir? Is it visible, sir? Himanshu, sir, is it visible? Thank you.
Good afternoon. Good afternoon, all the participants. Mitali ma'am, am I audible? Sir, So, I welcome all the participants in this 23rd online training. And we are again blessed with your presence as a resource person, Mitali ma'am. And as we had decided that this HPC training is to be conducted in 3 sessions. This is the first of this kind, I suppose. The second, we hope we can conduct on Saturday. So I think the participants are enough, and we can start the session. In the meantime, participants would be connecting. So with this, I request Mitali ma'am to kindly start the session. sir, thank you, Aryavat Sahodaya, for giving me another opportunity to interact with the learned educators across. This session is going to be a little different, probably different for me also, because this will be my first session which I will be conducting without a PowerPoint presentation. So this here, I actually wanted to bring a real holistic report card in front of you. So I thought that why prepare a presentation, why not connect directly through a. So this is a new experience for me. I hope all of you will enjoy and try to understand. Today, our basic aim is to discuss the National Curriculum Framework's new holistic report card format. And today we will highlight on the format of foundational stage. I hope you know what is foundational stage. Foundational stage means classes nursery to 2. Bal Vatika 1, 2, 3, class 1 and class 2. So let me just start by my presentation. Okay. Fine. I hope my screen is visible to all of you. Visible. Okay. Now, this holistic report card is a talk of the town right now. In every group that I am, everybody's talking about holistic report card formats, what to do, how much to do. We also had a circular from CBSE. If there are any principals over here, then you must be knowing that CBSE also actually wanted to know. We are implementing this session. So, let me tell you first one thing, that what is this holistic report card? How does it look like? How you have to fill it up? What is the method of filling it up? This is what we are going to discuss today. And before we discuss, before you understand this, let me make it very clear that there's no pressure on you that you have to implement it exactly in the same way. Now, this is the report card which has been given to us. This is just a format, an outline which has been given to us. Every principal, every school, every teacher has a complete authority to work on it and make a better version and implement it in his or her school. So please, this is not a complete, complete liability on you. You can use your own ideas. You can enrich it in many ways. You can edit it in many ways, and then you can use it. Okay, so this is just an exemplar. Keep this in your mind before we begin further. So holistic report card has been designed by Parak. Now, who is Parak? Who is Parak? Let us try to understand. So Parak is actually a new assessment center of NEP 2020. So when NEP 2020, one special cell which would take care of assessments was developed. And this cell is known as Parak. So Parak stands for Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. P for performance, A for assessment, R for review, A for analysis, A for knowledge, and H for holistic development.
That means, what it simply means, please try to understand. It simply means कि भैया आप पढ़ा रहे हो, इसके बाद आप असेसमेंट भी ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप असेसमेंट सिर्फ इस चीज का ले रहे हो कि आपके बच्चे ने 10 आंसर्स रख लिया, अच्छे से रटा कि नहीं, आपका बच्चा अच्छे से आपने जो क्लास में बताया उसको लिख सकता है या नहीं, या आपके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑन स्फीयर्स। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने बहुत डिटेल में भी I had also discussed with you when we are doing national curriculum framework for the foundation stage. अगर आपको याद होगा, we were discussing the Panchakoshas. So developing all the Panchakoshas is actually holistic development. So you have to understand that परख एक ऐसा सेल है जो ये निश्चित करता है कि जो भी स्कूल्स असेसमेंट करते हैं वो असेसमेंट चहुमुखी है या नहीं, और चहुमुखी शायद कहना गलत होगा हिंदी में, rather now it is more than चहुमुखी, it's a 360-degree assessment. So आप परख का काम है ये चेक करना कि whatever the school is assessing, that assessment, that reviewing process should be 360 degrees. So I hope you understand what is parakh now. It is assessing your performance, the child's performance. Okay. So now if you come to parakh, parakh does large scale assessments. Parakh is responsible for establishing assessment standards. Parakh is responsible for holistic approach to education and assessments. Parakh is responsible for even board exams, deciding the pattern, what kind of board exams will be, what kind of questions will be, what will be the change in the pattern and all. Everything is decided by Parakh now. So Parakh is a very important cell which you should understand. Now teachers, before we directly move to the holistic development card, please understand these simple points. Now we are talking about holistic development, यानी holistic development मेरे रिपोर्ट कार्ड से दिखना चाहिए, मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये समझ में आना चाहिए कि holistic development हुआ। तो holistic development के लिए सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है, but for every stage we have a different report card, like nursery, junior KG, senior KG, बाल वाटिका 1 to 3, 1 and 2, 5 years, उसके लिए अलग रिपोर्ट कार्ड है। फिर ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, 3, 4, 5, उसके लिए अलग रिपोर्ट कार्ड है। फिर नेक्स्ट स्टेज इज अगेन ऑफ 3 years, 6, 7, 8, उसके लिए अलग रिपोर्ट कार्ड है। एंड 9, 10, 11, 12 we are CBSE school, so we will follow the CBSE format. Okay. Now in foundational stage we have to take care of early child care and education. We have to take care of foundation literacy and numeracy, यानी आपके रिपोर्ट कार्ड में लिटरेसी का एक सेक्शन होगा, न्यूमरेसी का एक सेक्शन होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक सेक्शन होगा। नेक्स्ट आपके रिपोर्ट कार्ड में करिकुलर एम्स का एक सेक्शन होगा। Now what are the curricular aims of foundation stage? We will discuss. नेक्स्ट आपके रिपोर्ट कार्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन का पता चलना चाहिए, यानी आप मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, आप होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, आपका इंटीग्रेटेड सिलेबस है, ये पता चलना चाहिए आपके रिपोर्ट कार्ड। आपके रिपोर्ट कार्ड से ये पता चलना चाहिए कि आपने करिकुलम को रिड्यूस किया, जो आपका एनईपी कह रहा है आप उसी को फॉलो करते हैं, या नहीं कि आप 10 किताबें पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस। बहुत सारे स्कूल से मैंने देखा इवन इन प्री प्राइमरी दे हैव ईवीएस, दे हैव व्हाट नॉट, आईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। और these are the things जो आपके फाउंडेशन स्टेज के रिपोर्ट कार्ड में हम देखेंगे। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी असेस, असेस क्या करना है। तो जनरली बाकी क्लासेस में अभी तक हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिपोर्ट कार्ड बनाना है नर्सरी का, जूनियर केजी का, क्लास 1 का, 5 का, 7 का, किसी भी क्लास का, तो हम बच्चों के एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के मार्क्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, either we reflect the marks or we reflect the grades, whatever it is, but actually subject wise marks दिखता है। लेकिन NEP is a little different. The idea of NEP is different. NEP says that what is the aim of education? Aim of education is to accomplish certain curricular goals. कुछ गोल्स है, मान लीजिए मेरा गोल है कि मुझे एक दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है, सपोज, तो क्या मैं एक दिन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊंगी? आज मैंने सोचा, कल मैं बन गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल। तो जब ये करिकुलर गोल को अटेन करना अचानक नहीं पॉसिबल है, यानी कुछ स्टेप्स होंगे,
मुझे पहले कुछ एक्टिविटीज करना होगा, मुझे पहले पॉपुलर होना होगा, मुझे पहले इलेक्शन लड़ना होगा, नॉमिनेशन करना होगा, टिकट लेना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा, फिर उस पार्टी का नेता बनना होगा, जो पार्टी बहुमत में है, तब जाकर हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मोटा मोटी मैं ये समझती हूँ। तो यानी एक करिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स होती है, इनको कहा जाता है कॉम्पिटेंसीज। मान लीजिए मुझे फेमस होना है, मुझे पॉपुलर होना है, ये कॉम्पिटेंसी है। तो क्या मैं एक दिन में पॉपुलर हो जाऊंगी? नहीं, उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करना होगा। एक दिन मुझे वहां भाषण देना है, एक दिन मुझे वहां रैली करना है, एक दिन मुझे वहां वर्कशॉप करना है, एक दिन मुझे वहां जाना है। तो मैं 4, 5, 10, 20, 50, 100 से वर्कशॉप्स करूंगी या भाषण दूंगी या रैलीज करूंगी। इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब एक कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे दिन देने होंगे, कंट्रीब्यूट करने होंगे। दीज आर कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन से देखेंगे तो आप ये समझिए कि बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स मिलकर एक कॉम्पिटेंसी बनते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज बनके करिकुलर गोल बनता है, और करिकुलर गोल्स को अचीव करना ही एम ऑफ एजुकेशन है। दिस इज व्हाट एबीपी सेज। तो हम जज किसको करेंगे? जब हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और हम जजमेंट करेंगे तो हम किसको जज करेंगे? हम ये जज करेंगे कि मेरी लर्निंग आउटकम्स अचीव हुई है कि नहीं, टॉपिक्स नहीं, सिलेबस नहीं, लर्निंग आउटकम्स, मेरी कॉम्पिटेंसीज अचीव हुई है कि नहीं, एंड फाइनली मेरा करिकुलर गोल अचीव हुआ है कि नहीं। यानी आपके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। यू विल नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ओनली। नाउ यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ करिकुलर गोल्स, competencies and learning outcomes. I hope this is clear. ये एक बैकग्राउंड में आपकी तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ so that you understand the holistic report card properly. Now, you have understood this. This is very clear. Okay, let's move further. Now, you see, जो मैंने अभी आपको समझाया आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। Breakdown of aims of education. पहले aim, फिर curricular goal, फिर competency, फिर learning outcome. एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है। I hope all of you are able to see my screen. एम क्या है? एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी, ये एक एग्जाम्पल है। एम है कि बच्चे अपने से सोच सके, खुद से सोचे, हमें उन्हें स्पून फीड नहीं करना पड़े। ये एम ऑफ एजुकेशन। इसका करिकुलर गोल क्या है? चिल्ड्रन विल डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल फॉर डे टू डे इंटरेक्शंस इन 2 लैंग्वेजेस। यानी अगर थॉट प्रोसेस, थॉट का मतलब क्या है? सम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन चल रहा है, तो 2 लैंग्वेज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है बच्चा। ये हमारा गोल है। ये कैसे अचीव होगा? Converses fluently and can hold meaningful conversation. अगर एक बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ, एक ग्रुप ऑफ बच्चे के साथ या अपने आप के साथ कन्वर्स कर सक रहा है, बात कर सक रहा है, फ्लुएंटली मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हैंडल कर रहा है, इसका मतलब उस बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने से वो बच्चे का थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। क्लियर? तो ये कॉम्पिटेंसी के लिए लर्निंग आउटकम क्या होगा? लर्निंग आउटकम आपका ये होगा उस कॉम्पिटेंसी के लिए कि लिसन्स अटेंटिवली एंड स्पीक्स शॉर्ट कन्वर्सेशन विद फैमिलियर पीपल। यानी पहला, वो ध्यान से सुनेगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेगा जान पहचान के लोगों के साथ। बेटर, उससे अच्छा कॉम्पिटेंसी क्या होगा? इनिशिएट्स कन्वर्सेशन इन डेली लाइफ। वो शुरू कर सकता है। जैसे मान लो 10 लोग बैठे हैं, हमारा बच्चा ही शुरू कर दिया कन्वर्सेशन, हेलो अंकल, कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं आप, तो वो इनिशिएट कर सकता है। तीसरा, engages in conversation based on events, stories and their needs and asks questions. यानी मेरा बच्चा किसी टॉपिक पर कोई भी कन्वर्सेशन कर सकता है और क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये आउटकम्स है। अगर एक 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 करके हम सारे आउटकम्स को अचीव करेंगे तो मेरा कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी तो करिकुलर गोल अचीव होगा। करिकुलर गोल अचीव होगा तो एम हमारा जो एजुकेशन का था, हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का था, वो अचीव होगा। I hope you are understanding this. So, हमारे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम फाउंडेशन स्टेज को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन से करिकुलर गोल्स हैं, प्लीज इसको आप काइंडली समझिए। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि फाउंडेशन स्टेज के करिकुलर गोल्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, मैं आपको फिर से आज पढ़ा रही हूँ कि आपके फाउंडेशन स्टेज के करिकुलर गोल्स कौन कौन से हैं। इस पे हम लोग जाते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, मैं पहले वो स्लाइड को जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू दैट फाइल, इसमें हम करिकुलर गोल्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड डियर टीचर्स।
करिकुलर गोल्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम अपने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे फिलअप करें। हर रिपोर्ट कार्ड सेम है, सिर्फ करिकुलर गोल्स चेंज हो जाते हैं, दैट्स इट। तो अगर आप एक बार एनसीएफ-एफएस को समझ जाएंगे तो यू रेस्ट एश्योर कि आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को समझ गए। बाकी स्टेज में सिर्फ जो चेंज होता है वो होता है हमारा करिकुलर गोल्स, दे विल कीप ऑन चेंजिंग। Okay, now look at this. What is our first curricular goal? Our first curricular goal is physical development domain. You know, FS में 5 domains है। पहला domain है physical development. Physical development के अंदर 3 चीजें आती हैं। Children develop habits that keep them healthy and safe. Children develop sharpness and sensorial perceptions. Children develop fit and flexible body. ये आपकी 3 करिकुलर गोल्स आते हैं पहला डोमेन फिजिकल डेवलपमेंट में। यानी आपको जब आप पढ़ाते हैं एफएस स्टेज में, आपको फिजिकल डेवलपमेंट में ये पढ़ाना है, ये ऐसा पढ़ाना है, ये तीनों काम हो जाए। सेकंड आता है, एक और डोमेन आपका आएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे इसमें 5 डोमेन, देयर आर 5 डोमेन्स। तो डोमेन्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप एनसीएफ को देखेंगे, पलट के डोमेन्स आपके पास क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, व्हाट डज होलिस्टिक रिपोर्ट, अच्छा नो, नंबर 1 आपका जो असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप किसी बच्चे का असेसमेंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वो असेसमेंट रेगुलर होना चाहिए, वो असेसमेंट फॉर्मेटिव होना चाहिए। मैंने हाईलाइट कर दिया वर्ड्स को। फॉर्मेटिव मतलब एवरीडे, डे टू डे आप एक अनाउंस करके टेस्ट। इन द फाउंडेशन स्टेज देयर इज नो अनाउंस टेस्ट पैटर्न। एवरी डे इन द क्लासरूम यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग द एग्जाम्स। वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। It should promote learning and development of students. It should promote analysis, critical thinking, and conceptual clarity. बस, this is what you're trying to assess. यानी याद रखिएगा, जब भी आप फाउंडेशन स्टेज का असेसमेंट कर रहे हैं, वो रेगुलर होगा, वो फॉर्मेटिव होगा, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, और वो बच्चों की लर्निंग को प्रमोट करेगा, ना कि डर को। आज मेरा एग्जाम है, मुझे इतना रट्टा लगाना है, मुझे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे क्वेश्चन आंसर्स याद करना है, मुझे मैप पढ़ना है, मुझे डायग्राम्स पढ़ना है। नो, वो उसके लर्निंग को प्रमोट करेगा और उसके क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंप्रूव करेगा। दिस इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एफएस। नाउ जैसे हम लोग सीनियर क्लासेस में नंबर देते हैं ना, 80, 90, 100, 80 to 90 ग्रेड ये, 90 to 100 ग्रेड ये, 50 to 60 ग्रेड ये, उसी तरीके से हमारे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में ना ग्रेड्स है ना मार्क्स। तो है क्या भाई, हमारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है सिर्फ 3 चीजों को चेक करता है। पहला क्या चेक करता है? अवेयरनेस। दूसरा क्या चेक करता है? सेंसिटिविटी। और तीसरा चेक करता है क्रिएटिविटी। यानी हमारे जूनियर क्लासेस में, यानी अप टू क्लास 2 में हमारे यहाँ चेक हमको सिर्फ करना है अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लीज इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस लेवल डिस्क्रिप्टर्स। यानी आपको 3 चीज चेक करना है कि बच्चे में कोई भी एक चीज, मान लीजिए आपने एक एक्टिविटी किया जिसमें आपने बच्चे को कहा सूरज बनाओ, तो आप क्या चेक करेंगे? बच्चा अवेयर है कि नहीं सूरज क्या होता है, बच्चा सेंसिटिव है कि नहीं कि मैं सूरज गर्म करता है तो सूरज के पास नहीं जाना है, सूरज के दिन, सूरज की वजह से गर्मी का सीजन होता है, गर्मी में हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं। और तीसरा, बच्चा जब सूरज को ड्रॉ करेगा तो वो कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? तो पहला चीज है। तीसरा, परफॉर्मेंस लेवल डिस्क्रिप्टर्स है, क्या है वो मैं आगे देखूंगी। और फिर रूब्रिक्स है। ये 2 चीज अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहला 360 डिग्रीज एचपीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। ये 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है जो एक लर्नर के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। नॉर्मली टीचर्स, हमारे जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, अगर एक बच्चे को मैथ्स में 100 में 30 नंबर मिलते हैं तो हम ये कहते हैं द स्टूडेंट हैज अचीव्ड 30 मार्क्स। इसका मतलब उसका ग्रेड डी है, वो पास नहीं है। लेकिन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहते हैं नहीं,
इस बच्चे का 30% प्रोग्रेस है. We show this. So you see how the attitude changes. एक कहता है 100 में तुमको 30 आया है, एक कहता है नहीं तुम्हारा 30% प्रोग्रेस है. तो इट इज लर्नर सेंट्रिक. वो लर्नर के प्रोग्रेस को दिखाता है, ना कि उसके रिटार्डेशन को, उसकी कमी को. नेक्स्ट, ये लर्नर को कहता है कि तुम अपनी लर्निंग जर्नी का चार्ज लो, मैं नहीं लूंगा, तुम लो, तुम देखो कि तुम्हें कहां तक पहुंचना है. ठीक है, तो अब आप इसको देखिए जरा. अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई. तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? Having knowledge related to understanding of activity or task to be conducted. उसको नॉलेज है कि नहीं, कि भाई कौन सा काम कर रहा है. जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देती हूँ. आप लोग में से बहुत लोग हिंदू तीर्थ स्थल में कभी ना कभी गए होंगे. मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैं एक बार जगन्नाथ धाम गई थी रिसेंटली. तो जब मैं गई लाइन पे, तो कुछ देर तो लाइन था. तो हम लोग एक लाइन को फॉलो करते थे. हम लोग अवेयर थे कि भैया मुझे इसी लाइन को फॉलो करके आगे जाना है. देखिए, मैं अवेयरनेस को रिलेट कर रही हूँ, आप काइंडली समझने की कोशिश कीजिए. उसके बाद एक समय ऐसा आया जब हम मंदिर परिसर में पहुंचे और वहां कोई लाइन नहीं था. जिसको जिधर दिख रहा था वो उधर जा रहा था. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी किधर है. कुछ लोग बाएं भाग रहे थे, कुछ लोग दाएं भाग रहे थे, कुछ आगे जा रहे थे, कुछ घूम रहे थे. You know, I was absolutely clueless कि where I have to go for the darshan. Then, somebody told me उस तरफ. Then I started running that side. So you understand, awareness कितना important है. क्या आपके क्लास के बच्चे अवेयर हैं कि आज वो क्या सीखने वाले हैं? क्या उनको पता है कि आज उनका टीचर उनको क्या बताने वाला है? That awareness has to be developed. कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी एक्टिविटी है, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, उस एक्टिविटी को अच्छे से करने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या सामान की जरूरत है, उसका रिजल्ट क्या होगा. You understand? This is the meaning of awareness. Now, what is the meaning of sensitivity? Sensitivity का मतलब ये है, which is very, very, very important, कि भाई आज जो मैंने एक्टिविटी की वो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक्टिविटी कर ली, लेकिन उस एक्टिविटी के जरिए मैं अपने इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल कर सकता हूं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, उस एक्टिविटी में था कि आपको एक गाना गाना है. आपने गाना गाया, आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा गाना तो बहुत खराब हुआ, किसी ने तालियां नहीं बजाई, और आप रोना शुरू कर दिया. इससे क्या पता चलता है? You don't have control over your emotions. You don't know how to manage your emotions. तो इसीलिए सेंसिटिविटी में बेसिकली हम बच्चे की इमोशनल क्वेश्चन को हाई करते हैं कि बच्चे ने क्या समझा, बच्चा उसको कैसे परसीव कर रहा है, और बच्चे अपने इमोशंस का चार्ज खुद से कैसे ले सकते हैं. तीसरा, क्रिएटिविटी. एक चीज होती है कि टीचर ने बता दिया, बच्चे ने कर लिया. The child is following whatever the teacher is saying. But the next thing is the child using his or her own brain to do that activity, to perform that activity, or whichever, whatever it is, that activity, whether it's a drawing or it's a speech or it's a coloring, whatsoever it is. So creativity is the use of original ideas to sort out a problem. Clear? Now I think these terms are clear. Now let us try to understand the performer indicators. एक term था ना, performer indicator. तो हमारे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 3 परफॉर्मर इंडिकेटर्स हैं: बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस. बिगिनर मतलब आप समझ गए, व्हाट ग्रेड? सी ग्रेड. हम समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं. प्रोफिशिएंट मतलब बी एंड एडवांस मतलब ए या ए प्लस. तो बिगिनर को एनसीएफ एनईपी कहता है बिगिनर ग्रेड मींस फॉर हिम, फॉर द चाइल्ड, फॉर हिम और हर, फॉर द चाइल्ड दैट एक्टिविटी इज अ चैलेंज. Proficient means that the child is trying to do that activity, perform. The child has the potential and the child is trying to use that potential to perform the activity successfully. And advanced means the child has successfully performed the activity. Clear? Beginner means performing that activity is a challenge for the child. Proficient means that the child is trying to perform. Use the potential. The child has the potential, the child is trying to use the potential. And advanced means the child has successfully performed the activity.
नाउ एचपीसी को समझने का तीसरा फैक्टर है क्रिएटिंग अ रूब्रिक. रूब्रिक वेरी वेरी सिंपल. रूब्रिक का मतलब बहुत सिंपल हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैं गाना सुनाऊं, कोई भी गाना सुनाऊं आपको, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा, ये मैंने गाना गाया, ये गाना था. फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं कि मैं गाना गा रही हूं. अब आप लोग सबको मैं चलो टीचर्स प्लीज मुझे इस गाने पे नंबर दीजिए, 10 में मुझे नंबर दीजिए. How many marks you will give me for the song? Some will give 2, some will give 5, some will give 7, some may give 10 because they love Mitali ma'am. So they say नहीं Mitali ma'am ने ये गाना गाया मैं तो 10 में 10 ही दूंगा. Whatever. लेकिन अगर आपने मुझे 2 दिए, 7 दिए, 10 दिया, 5 दिया, आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आपने मुझे 2 नंबर क्यों दिए, 5 क्यों दिया, 7 क्यों दिया, 10 क्यों दिया. So rubric means the criteria on the basis of which you are giving marks or grades or assessing somebody in short. So remember, whenever you are preparing a rubrics, you should, Deepak ji, you are giving me only 2 marks. You are very much, you're a miser. Please give me some more marks. At least I've attempted to say. Okay, thank you, Deepak ji. Just okay, so please try to understand that rubric means the criteria of assessment. Whenever you give any marks to a child, whatever you give marks or grade, you should have a pre-established list why you are giving this marks to the child. So this is known as a rubric. और rubric पे डिटेल में कभी एक वर्कशॉप लूंगी. rubrics बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मैं आपको जनरली समझाना चाहती हूँ कि rubric क्या है. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एचपीसी को जरा देखिए. एचपीसी एट फाउंडेशनल स्टेज होता कैसे, ये प्री नॉलेज था एचपीसी को समझने के लिए. तो मैं आपको एचपीसी दिखाऊंगी. अभी हमारा जो एचपीसी है फाउंडेशनल स्टेज का, ये 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए के 2 हिस्से हैं, पार्ट A1 एंड पार्ट A2, एंड इसके बाद भी है पार्ट बी, और उसके बाद हमारे पास है पार्ट सी. तो आप देखेंगे एक ऐसे आपको दिखाती हूँ रूब्रिक्स, ये आपको ये दिखाती हूँ. देखिए, लेट अस सी दिस. क्योंकि ये छोटे बच्चों का है, ये एक रूब्रिक आपके सामने है. फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एक्टिविटी का रूब्रिक है ये थोड़ा सा देख लीजिए. ये एक्टिविटी है चिल्ड्रन डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डे टू डे इंटरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस. तो टीचर ने कौन सी एक्टिविटी की? द टीचर हैंड्स आउट अ वर्कशीट टू द स्टूडेंट्स विद डिफरेंट इमेजेस. टीचर एक वर्कशीट देता है बच्चे को, अलग उसमें इमेज कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई है. द स्टूडेंट्स टेक टर्न टू फर्स्ट शो द इमेज ऑन द शीट to the entire class and then describe the image first in their mother tongue and then in the medium of instruction. यानी बच्चा उस वर्कशीट को लेता है और इस इमेज को समझाता है, पहले अपने मदर टंग में, फिर जो स्कूल का फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश व्हाटएवर इट इज उसमें. अभी देखिए, ये रूब्रिक्स का एक एग्जांपल है, बस एक एग्जांपल है, प्लीज इसको कॉपी मत करिए. अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी. हमें किसी भी एक्टिविटी से क्या चेक करना है? क्लियर है? हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? बिगिनर्स, प्रोफिशिएंट एंड द लर्नर. अभी यहाँ पर हम देखिए, बिगिनर्स के लिए हम यूज करेंगे टर्म सिर्फ एफएस में. जनरली हर जगह आपका बिगिनर्स, लर्नर एंड प्रोफिशिएंट ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन फाउंडेशन स्टेज थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा उसको बच्चों के साथ रिलेट करने के लिए, नेचर के साथ रिलेट करने के लिए, उस सेम चीज को नाम चेंज कर दिया गया. स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई. क्या नाम दे दिया गया है? स्ट्रीम, mountain, sky. Please remember this, that only in the foundation stage we have these 3: stream, mountain and sky. So beginner means stream, proficient means mountain and sky means high, advanced. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, beginner, proficient, advanced. ये बाकी सारे HPCs में यही टर्म यूज होता है. सिर्फ आपके NCF-FS में हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इन्होंने चेंज किया है. स्ट्रीम, माउंटेन एंड बिगिनर, लर्नर एंड प्रोफिशिएंट. ओके, सो आप प्लीज इसको यूज कीजिए. स्ट्रीम इज अ बिगिनर. इसका मतलब he is able to observe the image with awareness only for nudging, लेकिन बोल नहीं पा रहा. माउंटेन का मतलब पार्शियल अवेयरनेस है
and he's observing the image and is able to describe. And sky यानी proficient बच्चा कौन है? He displays complete awareness while observing the image. He is able to pick out details and make comprehensive comments. Clear? आपने देखा rubrics का मतलब क्या है? तो अगर आप stream देंगे तो इसलिए देंगे, अगर आप mountain देंगे तो ये कारण होगा, sky देंगे तो ये कारण. Similarly sensitivity पे भी rubrics बना हुआ है, creativity बना हुआ है. आपको ऐसे ही rubrics बनाने जब आप NCFFS को fill up करेंगे. ठीक है? ये NCFFS सॉरी ये HPC preparatory stage है. ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी, एक अगले सेशन में डिस्कस करूंगी. ये मिडिल स्टेज है, डिफरेंट स्टेजेस पर है. तो हमारा यहाँ पे jurisdiction था NCFFS को डिस्कस करना. This was an introduction. I hope all of you have understood that what is NCFFS. मैं एक HPC खोलती हूँ आपके सामने और उसको डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये पहला पेज है HPC का. आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं प्लीज. जैसे मैंने अपने स्कूल का बनाया है तो मैंने उसमें अपने स्कूल का बिल्डिंग दिया है, स्कूल का नाम दिया है, ये सब चीजें. यू कैन चेंज इट प्लीज, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, फाउंडेशन स्टेज, अंडरस्टैंडिंग HPC. बहुत सारे लोगों का ये कहना है, डिस्कशंस हो रही हैं कि HPC में बहुत सारे पेजेस हैं. तो बहुत सारे पेजेस होने की वजह से डिफिकल्ट है कि हम इतना प्रिंट आउट निकालकर पेरेंट्स को दें. तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है. वैसे तो हर स्कूल अपने तरीके से इस पे सोच रहा है, लेकिन चूंकि आज का सेशन मैं ले रही हूँ तो मैं आपको मेरा सोल्यूशन बता सकती हूँ. रेस्ट आप डिसाइड करो आपको क्या करना है. मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं जो HPC पार्ट है, तो यहाँ से पार्ट है, मैं उसको ऑनलाइन दे रही हूँ पेरेंट्स को. दिस पार्ट आई एम डूइंग ऑनलाइन विद द पेरेंट्स. ओके, हाउ टू फिल अप द HPC. तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे HPC के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C. पार्ट A में 2 हिस्से हैं, 1 and 2, फिर पार्ट B, फिर पार्ट C. आप इसको थोड़ा सा देखें. हाँ ठीक है. आई होप इट इज विजिबल क्लियरली नाउ. पार्ट A में बहुत जनरल इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है हमसे. नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, पिन कोड, यूडाइस कोड ऑफ द स्कूल, टीचर कोड. ये टीचर कोड एक नई चीज है जो आई है. अभी मेरे स्कूल में जैसे सारे टीचर्स के पास ओएसएस कोड है, आप ओएसएस कोड सकते हो. जनरल इंफॉर्मेशन, स्कूल नेम, रोल नंबर, क्लास. BB1, BB2 का मतलब है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2. मैं थोड़ा सा इसको और वो कर देती हूँ. आई होप इट इज क्लियर नाउ. बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, ग्रेड 1 and 2. जैसे मैंने आपको बताया, दिस HPC इज अप टू क्लास 2. इसके बाद सेक्शन एड्रेस, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, व्हाटएवर. जैसे यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया है. मैंने सिर्फ मदर्स नेम, फादर्स नेम दिया है. ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब मैंने यहाँ पे नहीं दिया है. इसके बाद देखिए, यहाँ बहुत खूबसूरत सी चीज है. इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी मच. दे आर आस्किंग फॉर अटेंडेंस मंथली. दैट इज every month your number of working days, every month your attendance. And if the attendance is low, what is the reason? Then you know this area, you see this, observe this very minutely. This area says, मैं इसको थोड़ा सा और font बढ़ा देती हूँ so that is clear to you. I, that means child. We're talking about the child. Child is interested in what? पूछ के भरेंगे. Regular course at home. मम्मी पापा के साथ वो क्या क्या करता है. If anything else, you can specify. You understand this? So we will fill up this. After that, your next page of this HPC is part A only, but it is section 2. Me and my surroundings. देखिए, NCFFS में हर जगह बच्चे को नेचर के साथ जोड़ कर रखने की कोशिश की गई है. The child should be very much attached to natural surroundings. So here also, you know, you will just see an example of this. Me and my surroundings. This is me. यहाँ पे बच्चे का फोटो लगाएंगे. My birthday. I live. My address. अगर जगह है तो एड्रेस दे दीजिए, नहीं तो कम से कम शहर का नाम दीजिए. This is my family. यहाँ family पिक आएगा. I want to become what? ये लगाइए. Okay. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है. These are my friends. Okay. फिर my favorite color, food, flower, sport, animal, subject. These all things. So अब मैम ये बच्चे कैसे लिखेंगे? नर्सरी के बच्चे, LKG, UKG के बच्चे कैसे लिखेंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को ये शीट देते हैं, और या फिर इन अ शीट ऑफ पेपर the teacher can write this information for the students, उनसे पूछ कर, and later on we can just fill it up. Because see, we have a school ERP, so ये सारा चीज हमने ERP में डाल दिया है. हमने सारा चीज ERP में डाल दिया है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
ERP के थ्रू हम अपने रिपोर्ट कार्ड पे फ्लैश कर रहे हैं। अब आपका स्कूल कैसा है उसको आप काइंडली देख लीजिए और उसके बाद बता कर लीजिएगा। I think Induji had a doubt. I missed it. Can you please again rechat, Induji? Next, let's come to the part B. Now, this part consists of a progress summary divided into 4 major components. पहला component क्या है? Activity. सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी आप हम लोग किसका HPC समझ रहे हैं? फाउंडेशन स्टेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज के HPC को समझने के लिए हमें समझना होगा करिकुलर गोल हमारा क्या है, कॉम्पिटेंसी हमारी क्या है, अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटी को प्लान करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला करिकुलर गोल, चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी, they develop sharpness of sensorial organs, they develop fit and flexible body। ये किस डोमेन के अंदर आता है? फिजिकल डेवलपमेंट। अब आप क्या करेंगे? इन तीनों चीजों को टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक एक्टिविटी प्लान करते हैं कि चिल्ड्रन विल बी टेकन टू द स्कूल ग्राउंड एंड some games have been organized for them। कैसा गेम? They have to go and run and they have to, all the things of their bag will be kept there, they have to pack their bag and they have to again come back and touch the starting line, starting point। Maybe मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने एक ऐसा गेम प्लान किया, एक्टिविटी प्लान किया। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को आप यहाँ पे लिख कि किस एक्टिविटी को आपने प्लान किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस एक्टिविटी को प्लानिंग कर लिया आपने, बच्चों से करवाया आपने। अब आप बच्चों को एसेस करेंगे कि किस बच्चे को हम क्या लेवल दे, किसको हम स्ट्रीम दे, किसको हम माउंटेन दे, किसको हम स्काई दे। तो इसके लिए आपको रूब्रिक बनानी होगी। अब आप एक रूब्रिक बनाइएगा, कोई भी रूब्रिक जो आपको अच्छा लगता है आप ऐसा रूब्रिक बनाइएगा कि हम स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई देने के लिए क्या रूब्रिक बनाए, अवेयरनेस के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। मान लीजिए मैंने एक एक्टिविटी दिया, बच्चा अवेयर हुआ कि नहीं, बच्चे को समझ में आया कि नहीं उसको क्या करना है, बच्चा सेंसिटिव हुआ कि नहीं। हो सकता है कोई बच्चा हार गया, कोई बच्चा बीच रास्ते में गिर गया, उसने कैसे बिहेव किया, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज किया, और वो क्रिएटिवली कैसे अपना बैग अरेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप रूब्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये रूब्रिक भी आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, इसके बाद आप फीडबैक देंगे कि ये जो एक्टिविटी आपने किया बच्चे को लेकर, व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन, that the child was not able to understand anything, the child did it very well, the child added something else which the teacher did not even tell the child, so you will put up your observational notes। okay, here देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर से समझाया गया, स्ट्रीम, माउंटेन और स्काई, लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी, स्ट्रीम सबसे कम, फिर माउंटेन, फिर स्काई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। यानी ये जो एक्टिविटी आपने किया, इस एक्टिविटी को करने के बाद अब बच्चे से पूछेंगे कैसा लगा तुम्हें, डिड यू लाइक डूइंग द वर्क, डिड यू फाइंड इट इजी, और टू डू दिस वर्क आई नीडेड। हो सकता है बच्चा कहे मैम हमसे अकेले तो नहीं हो पाया, लेकिन अगर मेरे साथ मेरा फ्रेंड रहता, मेरी टीचर रहती तो मैं जरूर कर लेता। So this is called self-assessment. Very, very important part of the HPC, self-assessment. Next part is peer assessment. The same questions you will ask his friend. आपके फ्रेंड ने इस एक्टिविटी को कैसा किया, आपके फ्रेंड को कैसा लगा, आपका फ्रेंड और अच्छा कर सकता था अगर उसके पास ये होता। So that means we are assessing that one, the teacher is assessing through rubrics. Next, the child is assessing himself or herself, self-assessment. And thirdly, the child's peer, the child's friends are assessing them. And it is not yet complete, my dear teachers. The fourth is the child's parents will assess. Now, how will the child's parent assess? आप देखिए, ये है आपका HPC, जिसमें ये कहा गया है कि learning teaching resources at home. बच्चे को घर में पढ़ने के लिए क्या क्या मिलता है, बुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, फोन, इंटरनेट मिलता है या नहीं? बिकॉज आज भी हमारे बहुत सारे फैमिलीज है जहाँ बुक्स, एक भी किताब आपको नहीं मिलेगी बच्चे के कोर्स बुक के अलावा, न्यूज़पेपर्स लोग लेते नहीं है, बहुत जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ये रिमार्क भी आएगा पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे को हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। दिस विल गिव द टीचर एन आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। क्लियर? दिस मच यू अंडरस्टूड? नाउ after this, part C comes. This was part B. Part C. So what was in part B? Self-assessment, peer assessment and parental assessment. Okay. Next, part C. Part C में हम performance descriptors को mention करेंगे। आप देखिए part C कैसा है। I'm just showing you one parts. Yes. Here. Key
performance descriptors. आपको बता दूं कि in the FS level you have domains, physical development, socio-emotional development, cognitive development, language and literacy development. अगर आप लोगों ने मेरा सेशन किया होगा NCFFS पे तो आपको ये सब समझ में आया होगा. ये डोमेन्स होते हैं. हर डोमेन में अवेयरनेस और आपको सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी चेक करनी है. Now this is an overall comment which is given by the teacher, qualitative inputs by the teacher based on students' ability. So here the teacher is giving an overall. Part C. मैंने आपको बोला था 3 parts हैं. So here we come to the end of it. ये part C. So this is a holistic report card of the foundation stage. अभी थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, ठीक है? I'll show you one example. Stream, mountain, sky आपको already समझ में आ गया. What is the meaning of stream? What is the meaning of mountain? And what is the meaning of sky? Now I'm trying to show you one exemplar. Please see this exemplar. अब आप इसमें से अगर कुछ चीजें हटाना चाहें, जैसे मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने स्कूल में क्या किया है. मैं इस वक्त पीआर असेसमेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा पहला साल है. तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं सेल्फ एंड पेरेंटल कर लूं. पीआर असेसमेंट के लिए शायद मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों को भी तो समझाना पड़ेगा ना कि मैं उनको क्या बताना चाहती हूँ. तो इसलिए मैं पीआर असेसमेंट नहीं कर रही हूँ. मैं नेक्स्ट जो समेटिव टर्म 2 होगा शायद मैं उसमें पीआर असेसमेंट कर पाऊंगी. ओके, सो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल. This is a common example for preparatory as well as foundation stage. Okay, just enjoy this. Such a beautiful one. See, one physical development curricular goal आपको पता ही है, तीनों मैंने इतनी बार आज बोला है. Healthy and sensorial perceptions develop करना, flexible body. तो ये competencies है. ये part भी डिपेंड करता है आपके स्कूल में कितनी अवेयरनेस है. आपके स्कूल में कॉम्पिटेंसीज ऑफ एनसीएफ आपको बताई गई है कि नहीं, तभी आप कर सकते हैं. नहीं तो आप इस पार्ट को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं टू बिगिन विद, अगर ये नहीं आपके स्कूल में डिस्कस हुआ है. Am I audible? Am I audible? Ma'am, yes, you are audible, but nothing is visible, ma'am. Now it is visible. Now visible. So action song, बच्चे टीचर ने बच्चे को सिखाया. क्या एक्शन सॉन्ग है? सेहत खूब बनाएंगे, सेहत खूब बनाएंगे, सेहत खूब बनाएंगे, पालक मेथी एक्सेट्रा खाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, नाचेंगे, व्हाट. So this is the activity which the teacher has planned. Activity लिखा टीचर ने. अब काम क्या क्या है? List all good and healthy habits explained. Can you sing the full song with actions? Can you name your favorite vegetable? ये है questions जो टीचर ने बच्चे से पूछा. इसके बेसिस पे टीचर ने एक रूब्रिक बनाया कि बच्चा all healthy habits नहीं जानता है, बच्चा अवेयर है, बच्चा फुल्ली अवेयर है, बच्चा इंटरेस्ट शो करता है हेल्दी हैबिट्स ईटिंग में, बच्चा 3-4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, बच्चा सारे हेल्दी हैबिट्स फॉलो, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा एक्टिविटी में, हेल्दी हैबिट्स में, बच्चा अडॉप्ट कर रहा है हेल्दी हैबिट्स को, और बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और क्लीन करने की कोशिश कर रहा है. दिस इज रूब्रिक. ये जैस जो भी सही होगा. आपको करना क्या होता है पता है? एचपीसी में आपको सिर्फ गोला बना. अगर आपका बच्चे स्ट्रीम लेवल पे है, स्ट्रीम पे गोल बना दीजिए. अगर आपका बच्चा स्काई लेवल पे है, स्काई में सर्कल बना दीजिए कलरफुल पेन से. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल द रेलेवेंट परफॉर्मेंस लेवल based on the individual student performance for each ability of this activity. हो गया. इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या आता है? टीचर्स फीडबैक. टीचर ने क्या फीडबैक दिया? चाइल्ड इज अवेयर ऑफ गुड एंड क्लीन हैबिट्स बट डज नॉट कीप हिमसेल्फ क्लीन. जो भी टीचर को बोलना था टीचर ने बताया. अब टीचर ने सेल्फ असेसमेंट करा है. देखिए सेल्फ असेसमेंट में आई लाइक डूइंग दिस एक्टिविटी, यस, नो, डू नॉट नो. तो बच्चे ने कहा होगा यस, टीचर ने उसको गोला बनाया, सर्कल किया. सो यू हैव टू सर्कल व्हाटएवर इज करेक्ट. फिर यहाँ पे पीयर असेसमेंट हुआ, टीचर ने सर्कल किया जो भी उनको सही लग रहा था. तो उसके बाद टीचर ने पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स ने बोला देखो भैया हमारे यहाँ बुक्स एंड मैगजीन्स इस पे अवेलेबल है. तो पेरेंट का ये आ गया. ये आप पेरेंट को दे भी सकते हैं शीट, जब पेरेंट वापस करेंगे एचपीसी इसमें गोल करके देंगे आपको. इसके बाद इसी तरीके से एक दूसरा डोमेन आ गया. जैसे ये कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट, अगर आप अवेयर नहीं है यू कैन लीव दिस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो अलाउड. योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. इज माई स्क्रीन विजिबल? Somebody just commented my screen is not visible. No, ma'am, it's visible. Thank you. Now, इसी तरीके से एक दूसरा डोमेन है ये.
चिल्ड्रन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर उसका एक्टिविटी होगा, फिर उसके एक्टिविटी के साथ उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर क्वेश्चंस के बाद रूब्रिक होगा, रूब्रिक के बाद टीचर्स फीडबैक होगा, फीडबैक के बाद सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा, पेरेंट्स असेसमेंट होगा, और इसके बाद फिर एक अगला डोमेन आ जाए। आई होप इट इज वेरी क्लियर, यू अंडरस्टैंड। फाइनली जब हमारे फाउंडेशन पांचों हो गया, जैसे आपका 5 सब्जेक्ट होता है ना, वैसे आप समझिए फाउंडेशन स्टेज में 5 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, इसी तरीके से हर डोमेन पे हम काम कर रहे हैं। ये लास्ट डोमेन है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इस पे भी हमने कोई एक्टिविटी कराई, हमने रूब्रिक बनाया, टीचर फीडबैक आया, सेल्फ आया, पीयर आया, पेरेंट आया, ठीक है। खत्म हुई ये बात, यहाँ पे खत्म हो गई। अब आप देखिए इसका अंत कैसे है। लास्ट इज दिस समरी ऑफ द एकेडमिक ईयर। ये पार्ट जो है पार्ट सी, जैसे इस बार मैंने क्या किया है, मैंने इस पार्ट सी को नहीं दिया क्योंकि ये समरी ऑफ द एकेडमिक ईयर है। आप दे सकते हैं ईयर की जगह इसको चेंज करके टर्म कर दीजिए, आप दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पेज को अभी नहीं दिया है, मैं पार्ट सी दूंगी जब मेरा फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, सेमेस्टर 2 हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको एक साथ दूंगी, इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया है। लेकिन आपका खत्म यहाँ होता है, दिस इज द एंड ऑफ योर होलिस्टिक report card, except this is the last page of your holistic report card. Are you understanding, teachers? Anybody has any confusion? This is next of preparatory level. ये मुझे हमें आज नहीं करना है, आज हमें सिर्फ NCF-FS को समझना है। Anybody has any doubts? Anybody wants to ask anything? You have any problems? Okay. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी। Just give me 1 minute, teachers. Just 1 second. Okay. Okay. I'm sharing the foundation stage PPT with you just to clear. This is NCF-FS. ये highly recommended है कि अगर आप FS stage के teachers हैं तो आप NCF-FS को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में है और ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसी पंचकोश के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। यही हमारे डोमेन्स होते हैं, यही 5 डोमेन है। सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश है, यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, खाना पीना खाता है कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्राण, उसके बाद मन, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद finally leading to happiness, that my child is happy or not. Okay, I'll put this in the slideshow view so that all of you can see. Okay. Next is ये 5 डोमेन्स की मैं अभी आपसे बात कर रही थी। फिजिकल एंड मोटर डोमेन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, cultural and artistic development, development of communication and early language literacy numeracy. यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेसी न्यूमरेसी की बात हो रही है, यानी लैंग्वेज लिटरेसी माना EVS पार्ट एंड न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिक्स। सो ये 5 डोमेन ही हमें फाउंडेशन स्टेज में पढ़ाने हैं। यही 5 डोमेन के इर्द गिर्द आपका पूरा फाउंडेशन स्टेज घूमेगा। और ये डोमेन्स है, इसके अंदर करिकुलर गोल्स हैं, करिकुलर गोल्स के अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं, कॉम्पिटेंसीज के अंदर लर्निंग आउटकम्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सो यही आपको NCF-FS में समझना है। इसी 5 डोमेन पर हमारा पूरा NCF-FS काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये मैंने आपको बताया। देखिए, फिजिकल डोमेन में 3 करिकुलर गोल्स हैं, सोशियो में 3 करिकुलर गोल्स हैं, कॉग्निटिव में 2 करिकुलर गोल्स हैं, लैंग्वेज लिटरेसी में 3 करिकुलर गोल्स हैं, एस्थेटिक में 1 करिकुलर गोल है और एक एक्स्ट्रा है, where the children develop the habit of learning that allows them to engage actively in formal learning environments. यानी अभी आपका बच्चा बाल वाटिका में है, 1 में है, 2 में है, इसके बाद 3 में जाएगा। तो सबसे पहला एक ऐसा करिकुलर गोल भी होना चाहिए जो उनको आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करे। आगे जो 3, 4, 5, 6 में वो पढ़ेंगे उसके लिए उनको तैयार करना है। सो कुल मिलाकर आप देखेंगे 13 करिकुलर गोल्स हैं। ये 13 करिकुलर गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज हैं। देखिए, एक करिकुलर गोल के लिए इतनी सारी कॉम्पिटेंसीज है, कल एक दूसरा CG2 के लिए इतनी करिकुलर कॉम्पिटेंसीज है, CG3 के लिए इतनी कॉम्पिटेंसीज है। तो आपको ये समझना होगा टीचर्स कि एक करिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना पड़ता है। एक कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्लासेस देने पड़ते हैं और हर क्लास का एक लर्निंग आउटकम होता है।
So this is how the entire curriculum proceeds. Now I'm doubtful a little how many schools have actually discussed NCFFS with the teachers. If it is not done, it will be very difficult for you to understand competencies, learning outcomes, but at least curricular goals आपके clear होने चाहिए और उसको उसके accordingly आप report card बना सकते हैं. अगर curricular goals आपके clear नहीं है, तो आप NCFFS का report card नहीं बना पाएंगे. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये क्लियर नहीं है, तो you can request for a session from Aryabhat Sahodya. Himanshu sir will help you with that. Simple ma'am will help you with that. And understand this first before you start with before you start working with your HPC. Okay, so this is what I would like to tell you from my side, and that's all I have with me today. If you have any questions, please come. If you have any questions, please come up. Tried my best to explain HPC in such a short interval duration of time. And next we'll come up with HPC preparatory stage and HPC middle stage, so that you understand what it is. Thank you so much, teachers. If there are any questions, come up. Otherwise, we'll wind up the session. I hope I've been able to explain you. I don't know if I'm successful or not. Participants can ask questions. If you have any questions, query. Attendance link has already been shared, and you'll your attendance on time. And this, what we covered today was only for the foundation stage. Yes, sir. So I hope the participants don't have any query for the writing. So checking, in the chat box if there are any queries. Yes, yes. I'm not able to find any. Simple ma'am, are you there? Yes, sir. Yes, sir. So you please conclude the session. Hello? Hello? Sir, Yes. am I audible? Yes. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Audible. Okay, okay. Audible. So thank you so much, Mithali ma'am, for wonderful session and very important session, I think, because everyone is very much worried about how to make the holistic report card. So very thankful to you, and also thankful to Himanshu sir to conduct such a wonderful training. So thank you so much, ma'am, and we will eagerly wait for next training. Thank you so much, ma'am. Thank you, participants. Thank you so much. Thank you, participants. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you, all of you. Thank you.